Hello everyone, welcome to my online prep. So here we are with the new revision series for your CAIIB exam of 2023. So exam dates are very near. These are just around the corner and the challenge for you is to complete the revision of the entire syllabus in this limited time period. Though it might sound very challenging, but it is not difficult if you follow the right strategy. So we are here to provide you that strategy and assist you to complete that syllabus. Now, this is the revision series for paper 3, that is Advanced Business and Financial Management. This is the new paper. इसको newly add किया गया है, पहले नहीं था, तो फिर बहुत ज़्यादा confusion है कि किस तरीके के topics आएंगे या फिर क्या MCQs है, क्या pattern होगा. उस सारी confusion को दूर करने के लिए we have, through a proper analysis of the other exams and the previous patterns, we have compiled the most crucial MCQs in this revision series. तो ये revision series आपको YouTube पे अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट. इसके अलावा माई ऑनलाइन प्रेप के ऐप पे और चैनल पे भी, मतलब वेबसाइट पे जाके आप फ्रीली जो मॉक टेस्ट है उनको डाउनलोड कर सकते हैं. उसमें भी ऐसे ही और सारे MCQs हैं. आपकी स्ट्रैटेजी यही होगी कि आप ज्यादा से ज्यादा MCQs सॉल्व करो, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करो, ताकि वो सारे जो भी टॉपिक्स हैं उनका आइडिया आपको लग जाए. सो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग द मॉड्यूल ए and the first chapter is basic of management. So now before we move on, if you haven't yet subscribed to the YouTube channel of my online prep, आप अभी subscribe कर लीजिए, because you will never miss another video. हम लोग रोज on a daily basis we are uploading these videos that will help you in completing your syllabus and its revision. So subscribe to the channel right now. Okay, so module A के first chapter में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है. We need to study the introduction to management, its definition, what is the process of management that is followed in the organization, functions that is performed, the importance, and the most important topic here is the management thoughts and approaches. क्या approaches है management में जो अलग अलग organizations follow करते हैं, what are the challenges and opportunities faced by the organizations, introduction to strategic management and business environment analysis. So इसमें से जो सबसे important topics हैं उसके MCQs हम यहाँ पे discuss करेंगे. इसके अलावा आप क्या करोगे, आप बाकी सारे जो मॉक टेस्ट है उसको सॉल्व करोगे तो आपको और ज्यादा MCQs मिलेंगे. सो विदाउट फर्दर एड्यू, let us start with the first question. Right, so the question is, what are some key features of the new classical or behavioral school of management? Now, like we said, we'll be discussing the MCQs from the latest pattern, जो pattern latest सबसे ज्यादा देखा जा रहा है, जो एग्जाम्स में आ रहा है उसके अकॉर्डिंग. तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो पूछे जा रहे हैं वो मल्टीपल ऑप्शन से रिलेटेड है. मतलब कि कुछ स्टेटमेंट्स होंगे, उसके अकॉर्डिंग ऑप्शंस दिए होंगे. वी नीड टू रीड द स्टेटमेंट्स वेरी केयरफुली एंड देन we need to select the most appropriate answer from the options that are given. So यहाँ पे भी statements हैं. The statements that are given to us are: first, it focuses on employee motivation. Second, believes different individuals get motivated differently. 3, views communication as a critical element for efficiency management. Fourth, considers teamwork essential for organizational performance. And fifth, has perspectives based on human relations and psychology. तो यहाँ पे किससे रिलेटेड है, बिहेवियरल स्कूल से. तो बिहेवियर से focuses on motivation. Motivation is a part of behavior. It is correct. It believes that different individuals get motivated differently. ये किसकी बात कर रहा है, ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात कर रहा है. सो ये भी बिहेवियर का पार्ट है. व्यूज कम्युनिकेशन, अगेन कम्युनिकेशन इज अ पार्ट ऑफ बिहेवियरल स्टडी. considers teamwork essential for organizational performance, ये भी सही है. and has perspectives based on human relations and psychology. तो ये तो definitely सही है, क्योंकि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, behavioral school की. तो यहाँ पे ये सारी statements है. इसके अकॉर्डिंग जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, that is 1, 2, 3, 4 and 5. All of these statements are right. So we know that the behavioral school of management, it focuses on understanding the human behavior within the organization. So the human behavior is studied, how the human behave. जब वर्कफोर्स है, एम्प्लॉयज है, वो किस तरीके से एक्ट कर रहे हैं, वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं मैनेजमेंट को, अपने को वर्कर्स को वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे. तो ये सारी चीजें बिहेवियरल स्कूल के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं. तो इसमें क्या क्या आता है, इसमें बिहेवियर से रिलेटेड चीजें आती है, लाइक मोटिवेशन, देन देयर डाइवर्स इंडिविजुअल नीड्स, कम्युनिकेशन, टीम वर्क, perspectives that are basically grounded in the human relations and psychology. तो ये सारी चीजें बिहेवियरल स्कूल में आती हैं.
So all of these statements, these are correct according to the Neoclassical School of Management. So D is the right option. Okay, next question. According to McGregor's X and Y theory, which of the following assumptions are associated with theory X? ठीक है, तो मैकग्रेगर ने अपनी थ्योरी दी थी, ये अप्रोच से रिलेटेड है टू द मैनेजमेंट, उसमें उन्होंने एक्स एंड वाई थ्योरी दी थी, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स से रिलेटेड है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स वाई से। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक्स से क्या स्टेटमेंट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेटेड है। अगेन वी आर गिवन सर्टेन स्टेटमेंट्स एंड वी नीड टू चूज द करेक्ट वंस। स्टेटमेंट्स आर द एवरेज ह्यूमन बीइंग इज इनहेरेंटली लेजी एंड ट्राइज टू अवॉइड वर्क। हाँ, तो ये एक्स से रिलेटेड है, दिस इज राइट। Then the next statement is individuals are self-directed and creative at work if they are properly motivated. तो ये X से related नहीं है, इसको cancel out कर देंगे. Then third is individuals prefer to avoid responsibility and be led by others. So ये भी X से related है, we'll mark this right. Fourth is individuals resist change, वो resist करते हैं, वो अपने पुराने pattern से stick करके रहना चाहते हैं. This is also right. And work is as natural as play if the work environment is favorable. तो ये भी X से related नहीं है. तो X से related कौन कौन से हैं, 1, 3 and 4. So this is option B. So जो X theory उसमें assume करता है कि जो individual है, जो persons हैं, उनको in general they do not like work, they dislike work, they avoid responsibility, they want to follow others. वो leader की तरह नहीं act करना चाहते, follower की तरह act करना चाहते हैं. एंड दे प्रेफर टू बी लेड, उनको खुद से इनिशिएटिव नहीं लेना, वो क्रिएटिव नहीं है, इनोवेटिव नहीं है. दे आर नॉट वेरी इंटेलिजेंट इन सॉल्विंग द ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स एंड दे ऑल्सो रेजिस्ट चेंज. सो एक्स से रिलेटेड 1, 3 एंड 5 है. हम इसमें एलिमिनेशन मेथड भी देख सकते हैं. हमने पहले देखा कि सेकेंड जो ऑप्शन है ये सही नहीं है, ये सेल्फ डायरेक्टेड नहीं होते हैं. सो सेकेंड किस में नहीं है उसको हम देख लेंगे. फर्स्ट ए, सी और डी तीनों में ही सेकंड है, तो ये तीनों ही कैंसिल आउट हो गए, हमने एलिमिनेट कर दिया, बचा क्या, केवल बी. सो बी इज द राइट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द थ्योरी एक्स. सो इट इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, according to Maslow's hierarchy of needs, what does progress up the hierarchy indicate about a person? So Maslow's hierarchy of needs से हमने बहुत सारे टॉपिक्स में पढ़ा है. Maslow पिरामिड उन्होंने दिया था कि किस तरीके से हम लोग बेसिक नीड्स से मूव करते हैं ज्यादा स्पेसिफिक नीड्स की तरफ टूवर्ड्स द लास्ट फेज, दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. तो ये मैस्लो की नीड है. तो इसमें पूछा कि जैसे जैसे हम प्रोग्रेस अप करते हैं, दैट इज वी आर मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, तो क्या होता है. स्टेटमेंट्स, अगेन स्टेटमेंट्स आर गिवन. फर्स्ट इज इंक्रीज इंडिविजुअलिटी, ह्यूमननेस एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ. तो हाँ, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं अपने पिरामिड में ये सब होता है. सो फर्स्ट इज राइट. सेकेंड, डिक्रीज मोटिवेशन सेटिस्फैक्शन. तो ये तो मेन पॉइंट है ना मैस्लो का कि जैसे जैसे हम अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं हमें ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है. सो ये गलत हो जाएगा. देन डिमिनिश्ड फोकस ऑन फिजियोलॉजिकल एंड सेफ्टी नीड्स, ये भी गलत है. हम जैसे जैसे आगे की तरफ जाते हैं हमारी नीड्स और ज्यादा बढ़ती हैं. देन अ शिफ्ट टूवर्ड्स प्रायोरिटाइजिंग कॉम्प्लेक्स नीड्स ओवर बेसिक नीड्स, तो ये भी नहीं सही है. इसमें सही स्टेटमेंट क्या है, ओनली वन, दैट इज ए, increase individuality, humanness and psychological health. So A is the right option. Maslow के hierarchy के needs में हम लोग start करते हैं at the most lower part जिसमें basic needs होती हैं. Then we move above as our basic needs are satisfied to more higher level needs, and then as we move upwards more individuality, humanness and psychological health are gained. That is, we are likely to establish more of these qualities. So A is the right option, only first statement is right. Okay, next. Okay, so before we move forward, you can see here that you can download the My Online Prep from Google Play. On this app, you will get free mock tests as well as free videos. केवल free mock tests ही नहीं, free videos भी available हैं. ये बाकी सारी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी से बेटर है क्योंकि आप कम से कम टाइम में, आपके पास टाइम अभी कम है बट आपका एफर्ट क्या होगा, आपका एफर्ट 100% होना चाहिए. 100% ताकि आप इसी अटेम्प्ट में 60+ स्कोर करके एग्जाम को क्वालिफाई कर सके. अगर आप अपना 100% नहीं दोगे तो क्या होगा, आपको फिर से ट्राई करना पड़ेगा और तब भी गारंटी नहीं होगी. इसीलिए जब आप यहाँ अटेम्प्ट दे रहे हो, आपने एग्जाम के लिए वहां पे अप्लाई किया है, तो आप यहीं पे इसको क्वालिफाई करने का सोचो. इसके लिए मैक्सिमम मॉक टेस्ट सॉल्व करना, मैक्सिमम वीडियोस देखना, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना, ये जरूरी है. ये सारी चीजें आपको माय ऑनलाइन प्रेप के ऐप में मिलती हैं. इसीलिए जरूरी है कि आप अपनी
एफर्ट्स को 100% दो, हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, आप भी अपनी तरफ से कोशिश करो, एंड वी अश्योर यू दैट यू विल क्वालिफाई दिस एग्जाम in this attempt itself. Right. So let us move on to the next question now. The question is, according to McGregor's X and Y theory, which of the following assumptions are associated with theory Y? तो इसके पहले हम लोगों ने theory X से related देखा था, अब theory Y है. Statements that are given to us are, people are self-centered and indifferent to organizational needs. तो ये तो नहीं होता है, लोग जो होते हैं, जो employees होते हैं, वो organization की needs की तरफ ज़्यादा focused होते हैं. Second is, work can be as satisfying as play if the work environment is favorable. अगर लोगों को अच्छा environment मिलता है तो उनको satisfaction मिलता है अपने काम से, तो ये statement सही हो गया. Then people are inherently resistant to organizational needs. वो resistant नहीं होते हैं, वो organizational needs की तरफ ही work करते हैं, तो ये भी गलत है. People can be self-directed and creative at work if they are properly motivated. तो हाँ, यहाँ पे लोग जो होते हैं वो innovative होते हैं, creative होते हैं. They are more directed towards problem solving. So this is also right. And people resist any type of change. ये तो X का होता है. So what statements are right? 2 and 4. This is in option A. Option A says 2 and 4 is right, and according to theory Y, 2 and 4 are the correct assumptions. तो यहाँ पे theory Y क्या assume करता है कि work natural play की तरह होता है, मतलब अगर work environment conducive है, it is favorable, तो हम लोग को अपने काम से satisfaction मिलता है. And people can be self directed and creative अगर उनको proper motivation मिल रहा है, motivation in the form of remuneration, awards that are given, if their opinions they are heard and understood, तो क्या होता है उनके लिए favorable environment होता है. यहाँ पे सेल्फ कंट्रोल फॉलो करते हैं वो लोग ताकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव किया जा सके, वो पर्सनल गोल्स पे नहीं बल्कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स पे ध्यान देते हैं. तो ये सारे assumptions थ्योरी वाई से रिलेटेड है. सो द करेक्ट आंसर इज ए, 2 and 4. Next, which of the following business models involve initial low cost or free offerings to the customers? तो ये business modeling से related है. तो यहाँ पे पूछा गया कौन से business model शुरुआत में initial low cost या फिर free offerings provide करते हैं. So the given statements are profit pyramid model, multi-component systems model, advertisement model और de facto industry standard model. तो इसमें से ये स्ट्रैटेजी कौन फॉलो करते हैं? दिस स्ट्रैटेजी इट इज फॉलोड बाय द प्रॉफिट पिरामिड मॉडल एज वेल एज द डी फैक्टो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड मॉडल, दैट इज 1 and 4. ये दोनों ही मॉडल क्या करते हैं? दे ऑफर फ्री ऑफरिंग्स और लो कॉस्ट ऑफरिंग्स टू द कस्टमर्स इन द बिगिनिंग, एंड देन दे ग्रेजुअली मूव फ्रॉम मोर एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स. मतलब पहले वो फ्री ऑफरिंग करते हैं, लो कॉस्ट करते हैं, फिर कस्टमर्स का क्या क्रिएट हो जाता है? इट क्रिएट्स अ हैबिट अमंग देम, एंड देन दे मूव टुवर्ड्स मोर एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स. इसके अलावा जो मल्टी कॉम्पोनेंट सिस्टम होता है, मल्टी कॉम्पोनेंट सिस्टम इट ऑफर्स अ प्राइमरी प्रोडक्ट एट नो प्रॉफिट. यहाँ पे प्राइमरी प्रोडक्ट एट नो प्रॉफिट प्रोवाइड किया जाता है, and no profit or loss is provided, and then they earn profit from secondary products. So primary product no profit और loss provide करते हैं, और profit किससे earn करते हैं? secondary product से. And then there's the advertisement model wherein basic product is provided for free, a basic product is provided for free, and then the revenue is generated from the advertisement. मतलब advertisement के थ्रू यहाँ पे revenue generate होता है. So हम लोग को किसके बारे में पूछा गया? Initial low cost और free offerings. ये किस में ऑफर हो रहे हैं? Profit pyramid model and de facto industry standard model. So option A, 1 and 4, this is right. The question is, which business models rely on generating profits from secondary products or services? तो अभी secondary products और services को revenue के form में कौन से model में use किया जाता है? The models or the statements are multi-component system model, advertisement model, switchboard model और the profit multiplier model. तो यहाँ पे जो correct option है, the correct option is C, 1, 2 and 4. मतलब multi-component systems model, एडवर्टीजमेंट मॉडल एंड द प्रॉफिट मल्टीप्लायर मॉडल, ये तीनों ही मॉडल सेकेंडरी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज पे रिलाई करते हैं. सो मल्टी कॉम्पोनेंट सिस्टम मॉडल में क्या होता है? इट इन्वॉल्व सेलिंग अ प्राइमरी प्रोडक्ट. अ प्राइमरी प्रोडक्ट इज सोल्ड एट नो प्रॉफिट और लॉस. यहाँ पे नो प्रॉफिट और लॉस सिचुएशन पे प्राइमरी प्रोडक्ट किया जाता है
और फिर प्रॉफिट्स जनरेट किससे होते हैं, किसी सेकेंडरी प्रोडक्ट से। देन द एडवर्टीजमेंट मॉडल, ये क्या करता है, ये प्रॉफिट एक्चुअली फ्री सर्विसेज पे से प्रोवाइड करता है, मतलब जो एड्स आ रहे हैं ये सर्विसेज फ्री में प्रोवाइड करता है और प्रॉफिट्स या फिर रेवेन्यू जनरेट करता है उसके ऊपर एड्स क्रिएट करके। एंड द प्रॉफिट मल्टीप्लायर मॉडल, इट यूजेस सर्टेन concepts टू ड्राइव द सेल ऑफ अदर प्रोडक्ट्स। ये पहले कोई एक प्राइमरी प्रोडक्ट कुछ प्रोवाइड करेगा या तो फ्री ऑफ कॉस्ट में या फिर इनिशियल लॉस पे, एंड देन उसके बाद वो धीरे धीरे करके प्रोग्रेस करता है ज्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स की तरफ। सो इन तीनों ही मॉडल्स में सेकेंडरी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को यूज किया जाता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, 1, 2 एंड 4। स्विच बोर्ड मॉडल यहाँ पे सही नहीं है। नेक्स्ट, which of the following models involves connecting multiple sellers with multiple buyers? Multiple sellers और multiple buyers, कौन सा मॉडल ये कॉन्सेप्ट यूज करता है? द ऑप्शंस और द स्टेटमेंट्स आर स्विच बोर्ड मॉडल, प्रॉफिट पिरामिड मॉडल, टाइम मॉडल और द एफिशिएंसी मॉडल। तो यहाँ पे जो सही आंसर है इट इज ओनली वन, मतलब केवल स्विच बोर्ड मॉडल ही ये कॉन्सेप्ट यूज करता है। What the switch mode model does is it actually allows a firm to act as an intermediary. Here the firm acts as an intermediary, and then it connects multiple sellers with multiple buyers. यहाँ पे multiple sellers और multiple buyers को एक तरीके से connection provide किया जाता है। कौन से platforms ये use करते हैं? All the e-commerce platforms such as eBay, Amazon, Flipkart, ये सब इस मॉडल को यूज करते हैं एंड एक्चुअली दे आर यूजिंग दिस मॉडल वेरी सक्सेसफुली। जितना ज्यादा आज के टाइम पे हम लोग ई कॉमर्स यूज कर रहे हैं, हम लोग को कुछ भी चाहिए होता है, हम इजीली अपने फोन से अपने लैपटॉप्स को यूज करके ऑर्डर कर देते हैं और वो सारी चीजें हमारे डोर स्टेप पे हमें मिल जाती है। वी डू नॉट इवन नीड टू स्टेप आउट एंड गो इनटू द फिजिकल मार्केट। तो यहाँ पे एक्चुअली हम देख सकते हैं स्विच बोर्ड मॉडल कितना ज्यादा प्रैक्टिकली सक्सेसफुल है। तो ये इंटरमीडिएट की तरह एक्ट करता है बिटवीन द सेलर्स एंड द buyers. So A is the right option. Moving on. Question is, which of the following are not roles of the management in the modern day banking sector? तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस होते हैं जो कुछ नेगेटिव पूछते हैं ये इसीलिए होता है ताकि एस्पिरेंट्स को कंफ्यूज किया जा सके। अगर हम लोग जल्दी जल्दी में हम लोग टेंशन में उन्होंने पढ़ लिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर रोल्स, तो हम क्या करके आ जाएंगे, जो मैनेजमेंट के रोल है उनको मार्क करके आ जाएंगे। बट यहाँ पे ऑपोजिट पूछा है कि मैनेजमेंट के रोल क्या नहीं है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप एकदम पीसफुल कंपोज्ड माइंड से एग्जाम दो। आप देखो कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है उसके बाद आंसर करो, जल्दबाजी में आंसर नहीं करना है। ठीक है, सो नाउ वी कैन रीड द स्टेटमेंट्स। द स्टेटमेंट्स आर इंश्योरिंग ऑप्टिमम एलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तो ये तो मैनेजमेंट का रोल है, तो ये नहीं होगा हम लोग के लिए सही। देन मेकिंग द बैंकिंग सिस्टम मोर रेजिलियंट एंड स्ट्रांग, तो ये भी है मैनेजमेंट का रोल। तो यहाँ पे भी हम लोग क्योंकि नॉट पूछा गया है तो हम इसको भी कैंसिल आउट कर देंगे। देन मार्केटिंग द बैंक्स सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स, तो हमने पढ़ा है कि जो मैनेजमेंट रोल है ये बाकी किसी भी तरीके के डिपार्टमेंट से एसोसिएटेड नहीं होता। ये क्या करते हैं, या तो केवल एडवाइजरी रोल प्रोवाइड करेगा। तो मार्केटिंग द बैंक सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स ये इसका रोल नहीं है, तो एक तो ये हम लोग के लिए सही हो जाएगा। फिर प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट्स ऑफ द इन्वेस्टर्स एंड द कस्टमर्स, ये भी मैनेजमेंट का रोल हो सकता है। सो दिस विल बी एक तरीके से इसको हटा सकते हैं। देन डिसाइडिंग ऑन द इंटरेस्ट रेट्स ऑफ द सेंट्रल बैंक, तो सेंट्रल बैंक के लिए तो कोई काम करना ही नहीं है, सेंट्रल बैंक तो अपने रेट्स खुद ही डिसाइड करता है, तो ये भी इसका रोल नहीं है। सो जो रोल नहीं परफॉर्म करता मैनेजमेंट ये है 3 एंड 5, दैट इज ऑप्शन ए। तो मतलब जो मार्केटिंग के बैंक सर्विसेज है, किस तरीके से बैंक की सर्विसेज प्रोडक्ट्स को मार्केट करना है, या फिर जो इंटरेस्ट रेट डिसाइड करने सेंट्रल बैंक के, ये डेफिनेटली इंपॉर्टेंट पार्ट है बट ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मैनेजमेंट बैंकिंग सेक्टर में बेसिकली किस पे फोकस करता है, इट इज फोकसिंग ऑन allocation of the resources, how the resources available are allocated, strengthening the system's reliance, also safeguarding the interest of the stakeholders, जो भी stakeholders है उनको interest को protect करना। interest rates on the central bank ये तो decide central bank खुद ही करता है, या कि मतलब जो बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी होती है सेंट्रल बैंक की वो डिसाइड करता है, इंडिविजुअल बैंक मैनेजमेंट नहीं करता। तो यहाँ पे हम लोग के लिए क्या हो गया, ये सारे स्टेटमेंट्स गलत है। हम लोग के लिए जो उसके नॉट फंक्शंस है वो यही है, मार्केटिंग द बैंक सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स एंड सेंट्रल बैंक रेट्स, ये मैनेजमेंट के फंक्शन नहीं होते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए,
3 and 5. Okay, next. Okay, in which ways can effective management contribute to improving the functioning of business? तो यहाँ पे पूछा गया है कि मैनेजमेंट कमिटी का एक्चुअली क्या कंट्रीब्यूशन होता है कि वो बैंकिंग बिजनेस को इम्प्रूव कर सकता है या फंक्शनिंग को इम्प्रूव कर सकता है. द गिवन स्टेटमेंट्स आर enhancing understanding, ability and morale of employees, improving coordination within the organization, boosting motivation levels and supervisory effectiveness, making investment decisions, or facilitating the development of resources like human resources, machinery and capital. तो इसमें से मैनेजमेंट का रोल क्या नहीं है. अब डायरेक्टली इसमें हम लोग यही देख रहे हैं कि मैनेजमेंट क्या परफॉर्म नहीं करता है. इट एक्चुअली डज नॉट मेक एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन. इन्वेस्टमेंट डिसीजन ये नहीं क्रिएट करता है. मतलब इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने का काम मैनेजमेंट का नहीं है. इसका काम क्या है, ये किस तरीके से फंक्शन को, ऑर्गेनाइजेशन को बेटर इंप्रूव कर सकते हैं, एम्प्लॉयज का मोरल, मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं, कैसे कोऑर्डिनेशन बढ़ाया जा सकता है, मोटिवेशन लेवल, सुपरवाइजरी इफेक्टिवनेस कैसे और ज्यादा एफिशिएंट कर सकते हैं, एंड रिसोर्स एलोकेशन सच एज human resources, machinery and capital. These are all the functions of the management. So the correct option is D. 1, 2, 3 and 5. 4 गलत है. 4 हमारे लिए यहाँ पे सही स्टेटमेंट नहीं है. So the correct option is D. 1, 2, 3 and 5. These are the ways in which the management can contribute. सो इन इफेक्टिव मैनेजमेंट क्या क्या करता है, ये बहुत सारी प्रैक्टिसेस और प्रोसेस हैं जो कि वो फुल्ली परफॉर्म करता है. सो ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस को ये कैसे इंप्रूव कर सकता है. इट इंक्लूड्स एनहांसिंग द अंडरस्टैंडिंग, एबिलिटी एंड मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज, इंप्रूविंग द कोऑर्डिनेशन. ये सारी चीजें किस में आती हैं, ये मैनेजमेंट फंक्शन में आती हैं. ऑन द अदर हैंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ये मैनेजमेंट का एक तरीके से बाकी सारे ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होता है. ये मैनेजमेंट का हर तरीके से नहीं है. वो एडवाइजरी रोल प्ले कर सकता है डेफिनेटली, लेकिन वो मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, द फाइनल चॉइस, इट इज नॉट इन द हैंड्स ऑफ द मैनेजमेंट. इसीलिए ये गलत हो जाता है. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज डी. नेक्स्ट. Which of the following are the key features of the classical or traditional school of management? अब ये फिर से अप्रोच से रिलेटेड है. क्लासिकल या ट्रेडिशनल स्कूल से रिलेटेड क्या की फीचर्स है. द गिवन स्टेटमेंट्स आर एम्फसाइजिंग द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर एनहांसिंग एम्प्लॉय एफिशिएंसी. ये तो सही है, ये क्लासिकल में इसमें एम्फोसिस होता है. देन viewing the organization as a network of relationships, ये क्लासिकल का नहीं, ये बिहेवियरल का है, तो ये हम कैंसिल आउट कर देंगे. देन प्लेसिंग अ सिग्निफिकेंट एम्फोसिस ऑन प्रोडक्शन, ज्यादातर प्रॉफिट प्रोडक्शन इसी पे फोकस होता है. फोकसेस ऑन एरर्स एंड द रेक्टिफिकेशन. सुपरवाइजरी रोल, इट इज इंपॉर्टेंट. देन अज्यूमिंग एम्प्लॉय कॉन्टिन्यूटी डिस्पाइट ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस. मतलब वो क्या करते हैं कि अगर रेजिस्ट कर रहे हैं इंडिविजुअल्स तो रेजिस्टेंस को नहीं देखते, उनको लगता है कि एम्प्लॉय कंटिन्यू करेंगे भले ही कोई भी ऑर्गेनाइजेशनल चेंज आए. एंड गिविंग इक्वल इंपॉर्टेंस टू ऑल टाइप्स ऑफ जॉब्स एंड एम्प्लॉयज. तो ये भी सही है. क्या सही नहीं है, ओनली सेकेंड स्टेटमेंट इज नॉट राइट. तो सेकेंड किस में नहीं दिया है, बी में नहीं दिया है, डी में नहीं दिया, बट बाकी सारे स्टेटमेंट सही है. सो डी इज द राइट ऑप्शन. 1, 3, 4, 5 एंड 6 यानी कि ऑल एक्सेप्ट 2 आर करेक्ट. तो जो ट्रेडिशनल अप्रोच है या फिर क्लासिकल अप्रोच है, टेक्नोलॉजी पे फोकस करता है, एम्प्लॉय एफिशिएंसी किस तरीके से इंक्रीज की जा सकती है उस पर देखता है. वो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन को एक मशीन की तरह ट्रीट करता है, एक मशीन की तरह ट्रीट करता है, और एम्प्लॉय मशीन के पार्ट्स होते हैं. सो द ऑर्गेनाइजेशन इज द मशीन एंड एम्प्लॉयज आर द पार्ट्स. तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है किसमें कि मतलब क्लासिकल में किस तरीके से ट्रीट किया जाता है. ये एरर्स उनके करेक्शन पे फोकस करता है, अज्यूम करता है कि टर्नओवर रेशियो नहीं होगा, मतलब लोग रहेंगे यहाँ पे. देन उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन को एक नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप, दिस इज एक्चुअली नॉट अ फीचर ऑफ क्लासिकल. ये क्लासिकल या ट्रेडिशनल स्कूल में नहीं आता है. इसीलिए हम लोग का सही या राइट आंसर ऑप्शन इट इज डी. सो हियर वी हैव द राइट ऑप्शन. Okay, so that's all for today. Like we said, we discussed the most important MCQs following the latest pattern that has been observed in the examinations. ये सारे multiple choice questions, multiple statements पे based हैं. यही exams के लिए crucial है. तो जरूरी है कि आप ज्यादा से ज्यादा MCQs को solve करो, because in this limited time it is not possible for you to go through point by point all the chapters. So आप क्या करोगे, MCQs solve करो, जितने ज्यादा मॉक टेस्ट हो सकता है आप मॉक टेस्ट दो, ताकि और ज्यादा क्वेश्चन सारे रिवीजन आपके होते जाएं.
आप क्या करोगे, आप ये सारी वीडियोस देखो, आप खुद को मार्क करो, यू कैन मार्क एंड एनालाइज योरसेल्फ कि आप एक्चुअली कौन से टॉपिक्स में आप बहुत ज्यादा लैग कर रहे हो, आपको कितनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, आप खुद को स्कोर प्रोवाइड करो। यू कैन एक्चुअली कॉमेंट डाउन योर स्कोर बिलो कि आपने इतनी ये जो भी जितने भी क्वेश्चन थे उसमें से कितना आपके सही रहे, कॉमेंट डाउन द स्कोर बिलो एंड देन वील मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। सो आप नेक्स्ट वीडियो मिस ना करो, इसके लिए इफ यू हैवेंट येट देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, हिट द लाइक बटन। आप इसके अलावा माई ऑनलाइन प्रेप का ऐप डाउनलोड करो, उसमें जो एमसीक्यूज हैं, मॉक टेस्ट हैं, उनको सॉल्व करो, जो वीडियोस अवेलेबल है उनको लो। हम ये इसीलिए कर रहे हैं ताकि आपको और ज्यादा हेल्प मिल सके अपने रिवीजन में, so that you can qualify your exam in this given attempt. So now we'll meet again in the next video. Till then, keep learning with us. All the best. Thank you.